What's happening, guys? My name is Harsh. Thank you so much for joining us once again. Jolly LLB 3 theaters में आ चुकी है, starring अक्षय कुमार, अरशद वारसी and once again सौरभ शुक्ला. But क्या ये third entry into the franchise retain कर पाती है the same humor, heart and the intense court procedural drama? आज unpack करेंगे Not So Harsh. Let's get into the review. ये मूवी लाइक द पास्ट टू मूवीज भी फोकस करती है ऑन सम वेरी क्रूशल लॉ केसेस. इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, very prevalent to our Indian society. And इस entry में भी they touch upon land embezzlement and land extortion by mafia in a lot of rural places. कैसे बहुत ही unjustified तरीके से लोगों से उनका land छीन लिया जाता है peanuts के दाम पे, and how then big developers, politicians, industrialists then take that money, take that area and develop and create big massive cities. This movie goes into the depth of that story in a very Indian traditional way, but क्या ये तब भी capture कर पाती है that same essence which made the previous two entries so good? ये मूवी आपको एक ग्लिम्स देती है कि उन फार्मर्स पे क्या बीती है, व्हाट अ पर्सनल टोल इट टेक्स ऑन देम, एंड हमारे जो दो मेन लीड्स हैं दे फाइंड ईच अदर एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ दिस कोर्टरूम ड्रामा. व्हाट रियली वर्क्स फॉर द मूवी आर द परफॉर्मेंसेस एंड द केमिस्ट्री बिटवीन कैरेक्टर्स. अक्षय कुमार, अरशद वारसी, आप इनको जो अपने कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए ऑन स्क्रीन देखते हो, एंड देयर इज अ फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन देम. दैट इज डेफिनेटली अ फन पार्ट टू वॉच. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज सौरभ शुक्ला जी इन हिज कोर्ट पीस, एंड उनका बैंटर विद बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स एज वेल इज a blast to watch. That is what injects this movie with a lot of much needed life. And इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही कॉमेडिक मोमेंट्स भी ओरिजिनेट होते हैं very organically, all due to the performances that you're seeing on screen, and they really hit well. But these moments are sprinkled quite few and quite far apart from each other, जिसकी वजह से कभी कभार ये लगता है that the plot is not very well paced, it is not very evenly paced, and a lot of times it also feels like बीच में थोड़े से set pieces, थोड़े से plot points बस इसके लिए डाल दिए गए because the run time had to slightly increase. उनका actually ना plot से ना character development के हिसाब से कुछ ज़्यादा लेना देना था. So somewhere or the other it feels like the overall how the plot is driving through and कहाँ से characters शुरू हो रहे हैं, where they get, बीच में क्या चीजें होती हैं, and how they finally wrap up this overall conclusion. It feels like the entire story was not very tightly knit, and उसकी वजह से obviously there are some drop-offs. Movie also does a very good job to establish the backstory of the farmers and जो ये villagers हैं who have gotten affected, and उन पे क्या toll लेती है ये. There is a very beautiful take right in the first part of the movie, right in the introduction of the movie, जहाँ पे एक farmer अपने आप को he takes his life, and वो इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है that it really hits you. And it stays with you because साथ में there is a poem narration that is going on, and that is a moment that almost defines the heart and creates the opening core for the movie. But उसके आगे going into now the negatives, I feel there, like I already said, plot में there are some gaps. It is not a very tightly knit plot. A lot of times लगता है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि even the main जो हमारे leads हैं उनकी chemistry अच्छी है, it works well, but what do we do with it to get the plot to proceed further? So a lot of times it feels like हमारे दो जो protagonists भी हैं उसके साथ भी मूवी को क्या करना है, it is not very sure of, and it is kind of making it up on the way, which does not feel very organic. ये मूवी का जो मेन विलन है he also comes across very one note. इनिशियली जब उनको बस इंट्रोड्यूस करा जाता है आप एक सेकंड के लिए सोचते हो कि ओके मे बी ही इज अ लेयर्ड पर्सन एंड मे बी दिस इज नॉट अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन. ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया में खेलेंगे, एंड दैट कुड हैव एक्चुअली मे बी रियली हेल्प द मूवी वेयर यू डिड नॉट हैव अ वेरी क्लियर कट विलन. बट एट द एंड ऑफ द डे ये मूवी भी एक सेम जनरल ट्रोप विद विलन्स लेती है. आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट से हु सेज ही इज फॉर द पीपल, बट देन वंस यू फाइंड आउट व्हाट हिज रियल इंटेंशंस आर, he is a very one-dimensional villain, and that also does not help the story in its entirety. The movie also, I feel, wastes a couple of characters. Like मैं बोल रहा था, villain आपके one-dimensional हैं, so he does not feel very well utilized. Similarly, इनके जो अरशद वारसी and अक्षय कुमार के जो spouses हैं, played by अमृता राव and हुमा कुरैशी, they also feel slightly underdeveloped. उनका भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. They almost act like the reasoning and the moral compass for our main characters. तो बीच में just have a small conversation with them and show them the right way of how they should be doing things. But उसके beyond इनका ज़्यादा कुछ dynamic या इनको ज़्यादा किसी तरीके से develop नहीं किया गया है. That also feels like a missed opportunity. जो heart and humor bit है, I feel heart is still something that the movie does okay to capture.
बट जो ह्यूमर है विच हैज बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट इन दिस ओवरऑल फ्रेंचाइज, एंड जो बाकी दो सीरीज ने भी इवन वाइल रिटेनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था, यहाँ पे इट इज देयर, एंड जो सीन्स में अच्छा हिट करता है वहां पे बहुत अच्छा हिट करता है. बट देन देर आर सम सीन्स दैट जस्ट फील लाइक ये मतलब प्रॉपरली नहीं लिखा गया है, दे डिड नॉट नो हाउ टू डेवलप और यूज देयर कैरेक्टर्स, एंड इवन द कॉमेडिक टेंशन एट टाइम्स फील्स फोर्स्ड देयर. और फाइनल चीज जो मेरे को जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट डाउन हुआ था इन दिस एंटायर मूवी इज दैट जो इसका कोर्ट रूम प्रोसीजरल ड्रामा भी है, that is not as tight and as gripping as what we saw in the past two entries. That is more or less relegated to the second half, and first half में इसके बारे में बहुत ज्यादा दिखाया नहीं जाता. इनफैक्ट जो भी कोर्ट रूम ड्रामा है वहां पे is more a comedic setup for both the characters. It is in the second half when we actually get into the main case that is going on. एंड वहां पे भी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो इन अ मूवी लाइक दिस, इन अ फ्रेंचाइज लाइक दिस, दैट फील्स लाइक दैट इज समवॉट लैकिंग इन दिस वन, जिसकी वजह से ये अपने पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पा रहे. फाइनल थॉट्स देने लगूं तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा दिस इज अ बैड मूवी. दिस इज डेफिनेटली अ कॉम्पिटेंटली मेड मूवी. इसका बैकग्राउंड स्कोर, द वे इट इज शॉट, ऑल ऑफ दैट इज ओके. इट इज नॉट bad, it is decent, I will say, but this is definitely something that you can make or consider as a one time watch. अगर आप theaters में अपनी family के साथ जाना चाहते हैं, maybe then you can consider watching this in the theaters. But otherwise I will just say that while this is an okay movie, this is again a very interesting franchise that everybody loves, especially in India. ये इस मूवी का आप वेट कर सकते हैं टू मे बी लैंड ऑन OTT बिफोर यू काइंड ऑफ इन्वेस्ट टाइम ऑन इट, बिकॉज दिस मूवी इज अनएबल टू टच द हाइट्स ऑफ द लास्ट टू एंट्रीज इन कॉमेडी, इन कोर्ट रूम ड्रामा, इन द ओवरऑल प्लॉट एंड द टेंशन बिटवीन कैरेक्टर्स एज वेल. सौरभ शुक्ला जी को फिर से एक बार शाउट आउट देना चाहूंगा इन माय क्लोजिंग एज वेल. उनकी परफॉर्मेंसेस ने बहुत सीन्स बचाए हैं, एंड उनका रिएक्शन एंड उनके डायलॉग्स कहीं कहीं पे लगता है इट इज एड-लिब, इट इज इम्प्रॉम्प्टू एज वेल, बट ही इज जस्ट सो गुड एट प्लेइंग दिस कैरेक्टर, एंड सो डिड द मेन टू लीड्स आल्सो. आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब एज वेल. जस्ट दो उनके अराउंड मटेरियल था, आई विश दैट वाज आल्सो एज स्ट्रॉन्ग. रिव्यू कैसा लगा एंड मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें बताना. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द मूवी? डिड यू थिंक दिस वाज अ गुड एंट्री इनटू द ओवरऑल फ्रेंचाइज फॉर जॉली एलएलबी? बाकी दो पार्ट्स आई हैव ऑफिशियली रियली लव्ड, बट मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इस मूवी ने फेस करे, जिसकी वजह से इट मे बी डिड नॉट एंड अप मीटिंग द सेम एक्सपेक्टेशंस जो मैं सेट करके गया था. डिड यू आल्सो फील दैट? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थॉट अबाउट इट. Like, share and subscribe. As always guys, I've been Harsh and I'm going to catch you guys in the next one. See you guys there. Bounce up on a Tuesday night, straight legs hung like a neon fight. Got a story but I keep it tight, not so harsh, not so bright.